Hello guys, my name is Dil Kumar and I am the teacher for biology from BBC Group. Guys, this is your 11th biology class and this is your chapter number 1, which is classification of living world. So, in this chapter, the classification of living world, we are discussing the first kingdom, kingdom Monera. You know very well, remember, scientist R.H. Whittaker described the whole living world in 5 kingdoms, or we can say divide the whole livings in 5 parts. So these parts, or we can say these 5 kingdoms, are known as Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. तो 5 kingdoms में पहला मोनेरा. मोनेरा मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि ऐसे लिविंग्स जिनकी बॉडी मेड अप ओनली सिंगल सेल, मतलब सिंगल सेल के बने हो और साथ ही साथ वो सेल का टाइप होना चाहिए प्रोकैरियोटिक. ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मोनेरा किंगडम में फर्स्ट किंगडम मोनेरा, और वी आर डिस्कसिंग द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनेरा किंगडम. ओके, so in the case of bacteria, we already discussed about size and shape of bacteria. After that, discovery of bacteria, otherwise etc etc. Now today's topic is about bacteria is nutrition in bacteria. Means how many types can be on bacteria on the basis of nutrition. So these are only 2 types, autotrophic and heterotrophic. You know very well, autotrophic means, auto means self-made, means those bacteria that can be made, that can be synthesized their own food by itself, means those bacteria can be made own itself food. So these are known as autotrophic bacteria. Auto means self, खुद अपने आप अपना भोजन बनाने वाले, खुद अपना भोजन प्रिपेयर करने वाले या मैन्युफैक्चर करने वाले. So these are known as autotrophic bacteria. So first of all, we are going to describe the examples of autotrophic bacteria. Now, the autotrophic bacteria is further divided into 2 categories. Autotrophic bacteria further divided into 2 categories. Number 1 is photosynthetic bacteria, and number 2 is chemosynthetic bacteria. So first of all, we are going to number A, or number first, this is photosynthetic bacteria. As an indication of the name, photosynthetic means the power of sunlight. So those bacteria which can make their own food by the using of sunlight. ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट का यूज करके प्रयोग बना सकते हैं भोजन. तो आपने कुछ देखा होगा, वी आर गोइंग टू अदर टॉपिक प्लांट. प्लांट्स भी अपना भोजन खुद बना लेते हैं. दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. क्यों? आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल. उसी तरीके से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल. बट रिमेंबर, क्लोरोफिल इन प्लांट्स एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल इन bacteria are different things, not same, are very different. So you know very well, chlorophyll which are found in plant cell, that is chlorophyll A, while chlorophyll which are found in photosynthetic bacteria, that is called food bacteriochlorophyll. Clear guys? Okay, so what is the mode of action, or we can say what is the mechanism of food preparation? This is the bacteriochlorophylls use the carbon dioxide with hydrogen sulfide gas or other gases, sulfates gas or thiosulfate gases. So CO2 plus H2S, hydrogen sulfide gas, hydrogen sulfide, not gas, hydrogen sulfide, in the presence of sunlight and bacteriochlorophyll. So कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर सनलाइट की प्रेजेंट में एक बैक्टीरियोक्लोरोफिल के साथ काम करके ये क्या बनाएगा? शुगर फॉर्म करता है, सल्फर बनाएगा और वाटर बनाएगा. क्लियर कट एक अंतर आपको क्लियर यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि वाटर बैक्टीरियोक्लोरोफिल के केस में बनता है, जबकि इन द केस ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस
वहां पे वाटर यूज होता है, CO2 प्लस H2 इक्वल टू 6H2O6। याद आ रहा है 10th क्लास का कुछ कि फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होती है वहां पे वाटर का यूज होता है एज ए सबस्ट्रेट, बट इन दिस केस वाटर इज प्रोडक्ट, नॉट एज अ रॉ मटेरियल। क्लियर गाइस? तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, CO2 प्लस H2S मिलकर सनलाइट और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर, सल्फर एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? एक चीज आपको नोट करनी है, O2 नॉट रिलीज। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है वहां पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है प्लांट्स के द्वारा, बट बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये वाटर का यूज ही नहीं कर रहे हैं, वाटर तो प्रोडक्ट में बना रहे हैं। तो आप सीधी सट एक बात यहाँ पे दिमाग से सोच सकते हैं कि जहां पर वाटर यूज हो रहा होगा वहीं पे O2 का रिलीज होगा या फॉर्मेशन होगा। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट से वह कहां से प्रोड्यूस की जाती है, तो आप कहेंगे वाटर से। ठीक है, क्लियर? चलो इस पे टॉपिक पर आते हैं। आपने देखा इस तरीके से वाटर और ये सल्फर और शुगर बना। आपको ध्यान रखना है O2 नॉट लीड इन दिस बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक एंड बिकॉज H2O नॉट यूज। क्लियर? दिस टर्म, ये जो प्रोसीजर है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको कहा जाता है अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अनऑक्सीजेनिक मीन्स ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो दिस इज द फोटोसिंथेसिस बट दिस इज अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्लोरोबियम। Clear guys? Now we are going to second part, chemosynthetic. This is also eutrophic. Chemosynthetic bacteria is also trophic in nature, but these are not use sunlight. Sunlight use नहीं करते क्योंकि क्या करते हैं ये? कीमो मीन्स कीमो वर्ड लिया गया केमिकल से, केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। While ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल मटेरियल का, केमिकल सब्सटेंसेस का ऑक्सीडाइज करते हैं उनको या उनका ऑक्सीडेशन करते हैं। सनलाइट का यूज नहीं चाहिए, तो सनलाइट नहीं चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा किसी केमिकल सब्सटेंसेस का तो क्या फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होगी, और ये एनर्जी फर्दर यूज की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन। वो एक आगे की चीज है, बस आप एक एरो लगा के लिख लीजिए, आपके आगे क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ क्या होता है, कैसे होता है। आपको सिंपल यही याद रखना है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं दे आर नॉट यूज सनलाइट बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस अकर। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है। एग्जाम्पल इसके कई सारे हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपने 10th क्लास में पढ़े हैं बेटा, इन द नाइट्रोजन साइकिल। आपको पता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। ये क्या करते हैं, दीज बैक्टीरियाज कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टीरियल नाइट्रोजन साइकिल से आपको याद आ रहा होगा, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया भी क्या करता है, ये जो नाइट्राइट फॉर्मेशन हुई है नाइट्रोसोमोनास या कोकस से, उस नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट। क्लियर? याद आ रहा है कुछ? क्योंकि नाइट्रेट ही एक ऐसा आयनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है या आयन होता है जिससे कि पौधे आसानी से एब्जॉर्ब करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया पहले अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करते हैं और नाइट्राइट चेंज करते हैं नाइट्रेट में टू नाइट्रोबैक्टर। ये तीनों बैक्टीरिया आपको प्रॉपर याद आ रहे होंगे इन नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले रहे हैं, मेथनोसोमोनास। इसमें क्या होता है, मीथेन का ऑक्सीडेशन होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल। जहां याद आप गोबर गैस बनते हैं वहां पर इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका फेरोबिलस। फेरोबिलस फेरट, जहां पे फेरिस और फेरट आए हमें समझ जाना आयरन की बात है, लोहे की बात हो रही है। तो फेरोबिलस क्या करता है, ये फेरस आयन को कन्वर्ट कर देता है फेरिक आयन। फेरस आयन कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन। जैसे कि लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है, दैट आर कन्वर्टेड आल्सो। सो आप समझिए लोहे में जंग लग जाता है, इस तरीके से फेरस आयन कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन। अगला बैक्टीरिया का एग्जांपल हमने क्या लिया है, कार्बन बैक्टीरिया। तो कार्बन को चेंज करने वाला वो सिंपल बात है, तो ये CO को चेंज करता है CO2। CO इज द नेम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज गैस, और CO2 इज आल्सो गैस। तो CO इज कन्वर्टेड इनटू CO2
कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी फैटल देन CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा बहुत हानिकारक होती है, बहुत हार्मफुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये हमारे लिए अच्छा बैक्टीरिया हुआ एक तरीके से, CO को चेंज कर रहा है CO2 में, और ये CO2 को कौन प्लांट से ले सकते हैं, जो कि हम O2 दे सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, जो खुद फूड बना सकते हैं अपना, और जो खुद फूड बना नहीं सकते। इसमें ऑटोट्रॉफिक के 2 पार्ट हम पढ़े बेटा, पहला फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सेकंड वन इज कीमोसिंथेटिक। आपको नाम से पता पड़ रहा है फोटोसिंथेटिक, यानी कि इसमें सनलाइट का यूज होना है, क्लियर। बट एक बार याद रखेंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं की जाती कि आप इसको इस फोटोसिंथेसिस को प्लांट के साथ रिलेट कर दें, वो अलग चीज हो गई है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है, वहां पे O2 बनती है, यहाँ पे O2 नहीं बनती, वहां पे H2O वाटर यूज किया जाता है, और यहाँ पे H2O वाटर यूज नहीं किया जाता, जबकि वो H2O बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, एग्जांपल क्लोरोबियम बैक्टीरिया, ऐसा करते हैं। सेकंड पार्ट हेटेरोट्रॉफिक का, इसमें क्या होता है, सॉरी कीमोसिंथेटिक का। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, नाम से पता, कीमो मींस केमिकल्स, यानी कि यहाँ पे सनलाइट का यूज नहीं होना है, ये अपना जो फूड प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल को ऑक्सीडाइज करके ये अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। एग्जांपल आपके ये सारे नाइट्रोफिलिक बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, मैग्नोसोमोनास, फेरोबिलस, क्लियर। अब आपके ये यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ, अब अपन चलते हैं इस वाले सेक्शन पर, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक नेचर, ठीक है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके एग्जांपल से 3 दिखा रहा हूँ मैं, 3 टाइप इसके एग्जांपल के। नंबर 1 सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स बेटा मैंने आपको बताया है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि एक डेड और डीकेइंग मटेरियल पर अपने आप को ग्रो कराते हैं। डेड डीकेइंग मटेरियल मतलब कैसा, जो मान लो कोई भी बॉडी है, कोई मान लो ह्यूमन बॉडी है या कोई एनिमल बॉडी है, वो एनिमल डेड हो गया, मर गया, तो उसको जमीन में दबा देंगे तो वहां पे अपना ग्रो कराएगा ये वाला बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं एक्टिनोमाइसीटीज। इसका एग्जांपल है एक्टिनोमाइसीटीज, यानी कि ऐसे बैक्टीरियाज जो अपने आप को अपना फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं, डेड और डीकेइंग मटेरियल से, ठीक है। अच्छा, अगला एग्जांपल आपका ये ऊपर हो गया, नीचे आ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपको पता है, यानी किसी अदर लिविंग रहने वाले, मतलब किसी अदर लिविंग थिंग पर अपने आप को जिंदा रखने वाला बैक्टीरिया। देखो ऊपर वाला तो मरे जिंदा रहता है, सैप्रोफाइट मतलब किसी डेड डीकेइंग मटेरियल पर जिंदा रहने वाला बैक्टीरिया है, जबकि जो पैरासाइट है वो लिविंग मटेरियल पर ही जिंदा रहते हैं। जैसे कि पैरासाइट्स में एग्जांपल विब्रियो कॉलेरी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा कुछ बताया था विब्रियो कॉलेरी के विषय में। मैंने आपको बता रहा था जब कि जो बैक्टीरिया का साइज होता है एक कॉमा शेप होता है इस तरीके से, तो दिस इज द साइज एंड शेप ऑफ विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया एंड दिस आर लिव्स इन योर स्टमक। इससे क्या होता है, जब विब्रियो कॉलेरी ह्यूमन के पेट में इंफेक्शन करता है तो उस टाइम पर एक रोग होता है जिसे बोलते हैं आप कॉलेरा। इसके नाम से लिया गया कॉलेरा। कॉलेरा मतलब हिंदी में हैजा। इसमें क्या होता है, इसमें वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है और दस्त होते हैं, डायसेंट्री होती है, डायरिया होता है, ठीक है। तो जब किसी पर्सन को आपने देखा होगा डायसेंट्री लगातार हो रही है, वोमिटिंग बार बार कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, मतलब उसकी बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो उसमें डॉक्टर्स क्या देंगे, सबसे पहले उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बेलेंस जो हुए हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उसको फूड लगाएंगे, उसको बोतल लगाएंगे, उसको ORS देंगे बना के, ORS का पाउडर होता है ना, पानी मुर्गे पीते हैं वो देते हैं, जिससे कि पानी की कमी पूर्ति हो जाए। साथ ही साथ वो देखेगा डॉक्टर कि जो जिस चीज से इन्फेक्शन हुआ है, हैजा किससे हुआ है, विब्रियो कॉलेरी से, और यह क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो दवा देगा बैक्टीरिया को मारने वाली, जिसे बोलते हो आप नॉर्मल भाषा में एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो बैक्टीरिया किल करने के लिए क्या, वो एंटीबायोटिक्स यूज करेगा, ठीक है, और जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, और वो इसको आसानी से मार देगा। जब भी बैक्टीरिया पेट में मर जाएगा तो इसका इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा और वो पर्सन ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इतना लंबा नहीं जाना आपको, मैंने बस थोड़ा समझने के लिए आपको बता दिया कि रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। हम पढ़ रहे हैं सैप्रोफाइट, हमने पढ़ा डेड एंड डीकेइंग मटेरियल पर अपने आप को ग्रो करने वाले बैक्टीरिया। नंबर 2 पैरासाइट्स।
जिंदी चिप पे जिंदे रहने वाले, पहला एग्जाम्पल ब्लू कॉलेरा हो गया। दूसरा साल्मोनेला टाइफी, नाम से देखो टाइफी लग रहा है ना बाद में, टाइफी का मीनिंग है टाइफाइड से। आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं भाई तुझे टाइफाइड बुखार हो रहा है, जिसके लिए आप ब्लड टेस्ट कराते हो, विडाल टेस्ट, आपने ब्लड रिपोर्ट में देखा होगा विडाल टेस्ट। That test is used for the detection for salmonella typhi infection in your stomach। तो आपकी जो बड़ी आंत होती है पेट की, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और उस वजह से इन्फेक्शन से बॉडी में बुखार होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल वही काम, पहचाना क्या चीज है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किससे मर सकता है, एंटीबायोटिक्स से। दवा देंगे, ये मर जाएगा, पर्सन ठीक हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं आज पर, दैट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दो लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करके जिंदा रहते हैं। सिम्बायोसिस मीन्स क्या हो गया, दो लिविंग थिंग्स आपस में एक ऐसी एसोसिएशन बनाती हैं जिससे कि वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं और वो जिंदा रहते हैं। जैसे मेरे पास किसी पड़ोसी का खेत है, मेरे खेत के पास एक पड़ोसी का खेत है, मेरे पास बुग्गी है सिर्फ, उसके पास सिर्फ भैंस है, उसके पास बुग्गी नहीं है, मेरे पास भैंसा नहीं है। तो क्या करेंगे हम, भाई दोनों को हरा चारा लेके आना है पशुओं के लिए। तो क्या करेंगे, भाई एक काम कर, तू मेरी बुग्गी जोड़ ले और अपना भैंसा लिया, तो दोनों चल रहे हैं, दोनों काट के चारा लेके चले आएंगे। इसमें क्या हुआ, दोनों को फायदा हुआ नहीं हुआ, हमारी बुग्गी यूज हुई, उसका भैंसा यूज हुआ, दोनों का काम चल गया, दोनों का काम हो गया। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं हम सिम्बायोसिस। ये क्या होता है, एग्जाम्पल इसका राइजोबियम में लिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट। देखो याद करना, लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम दाल वाले प्लांट कह सकते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली के होते हैं जिनमें दाल पैदा की जाती है। एग्जाम्पल आपका मूंग दाल, अरहर दाल, ठीक है ना। तो इन दाल की जो पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, इनकी जड़ में एक एसोसिएशन बना होता है बैक्टीरिया का और इस प्लांट का, जिसे बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया में क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया इस प्लांट को ग्रो होने के लिए बहुत सारी नाइट्रोजन इस प्लांट को प्रोवाइड कराता है। नाइट्रोजन मिलती है पौधे को ग्रो होने के लिए और फिर यह पौधा बहुत सारे फूड प्रिपेयर करके बहुत सारे कार्बनिक मटेरियल्स इस बैक्टीरिया को देता है कि आप ये लो। दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं और अपना जीवन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सिम्बायोसिस एग्जाम्पल राइजोबियम इन लेग्यूम्स प्लांट। तो आपको बेटा लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं लिखनी है, सिर्फ इस तरीके से आपको लिखना है फ्लो चार्ट में। ये लिख लेंगे, फिर इसके नीचे आपको हेडर बना लेंगे साइड में, आपके पास पेज में जगह होगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा छोटा बोर्ड है। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आया, नहीं हो तो मुझे आगे कॉलेज आकर आप पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप नोट कर लेंगे, बाकी थैंक यू।